cos theta. R square equal a square plus b square plus 2ab cos theta. So magnitude of the resultant is what? Under root a square plus b square plus 2ab cos theta is the magnitude of the resultant of two vectors added by the parallelogram law of vector addition. पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट सेम आएगा. फिगर को पॉज करके थोड़ा स्क्रीन को बड़ा करके आप देख लीजिएगा. तो वैल्यू सेम रही दोनों की. ट्रायंगल लॉ से भी वही वैल्यू आई और पैरेललोग्राम लॉ से भी. नहीं, आइए हम कभी हम एंगल की बात कर लेते हैं. फिर वही कहानी, मैंने मान लिया कि जो रिजल्टेंट है वो एंगल ए से अल्फा बनाता है. वेक्टर ए से एंगल अल्फा. ये जो रिजल्टेंट था ये मान लो कि वेक्टर ए से अल्फा एंगल बना रहा है. इफ आर वेक्टर मेक्स एंगल अल्फा विद ए वेक्टर, then from triangle OMD tan alpha equal dm upon OM, perpendicular upon base. dm को तो आप निकाले ही थे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा. ठीक है, सेम वैल्यू. तो दिस इज द what you get here from both law, triangle law as well as the parallelogram law. The value of the resultant is same. The magnitude as well as the direction angle of the resultant from the vector A same. R vector equal to vector A plus vector B. Magnitude of R is given by under root A square plus B square plus 2AB cos theta. Now turn goes for the पॉलीगॉन लॉ. आप एक बार नोट कर ले इसको. फिर थर्ड और लास्ट लॉ इसका वेक्टर्स को एड करने का, पॉलीगॉन लॉ. नाउ टर्न गोज फॉर द डिफरेंट केसेस. आई डिफरेंट केस की बात कर लेते हैं. इसी में केस ले लेते हैं, वो चाहे ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ हो. वैल्यू दोनों के लिए रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का सेम आया है. तो आइए इसी में दोनों केसेस को हम डील कर लेते हैं. केस फर्स्ट, इफ थीटा इक्वल 0 डिग्री, दैट इज vector A and B are parallel, then resultant का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, या केवल R बोल दे. अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos 0 डिग्री. वैल्यू क्या होगी 1. सो R इक्वल अंडर रूट a square plus b square plus 2ab. That means under root a plus b whole square. So r is equal to a plus b. Simply, if the two vectors are parallel, then the magnitude of the resultant is simply equal to the sum of magnitude of the vectors. Simply, the two vectors are parallel to each other, then the resultant of the magnitude of these two vectors is simply equal to the sum of their magnitudes. Magnitude of resultant equal to sum of their magnitudes. Case second, if theta equal to 180 degree, that is vector A is anti-parallel to vector B.
vector A is anti-parallel to B vector, then R equal to A minus B. क्यों? क्योंकि आज आप जानते ही हैं कि cos 180 की वैल्यू क्या होगी, -1। cos 180 की वैल्यू -1, तो R इक्वल टू क्या है, A माइनस बी। केस थर्ड देखें, सिंपली केस थर्ड, if theta equal to 90 degree, that is vector A is perpendicular to vector B, then as cos 90 is what, 0, as cos 90 degree equal to 0, then R equal to 0, cos 90 value 0 होगी, so we can we can say R equals, ये पूरा टर्म 0 होगा, 2ab cos 90, ये पूरा टर्म 0 हुआ, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यह स्टैंडर्ड रिजल्ट आप रिमेंबर रखिए, स्टैंडर्ड रिजल्ट। दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ दिस टू, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दिस टू, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू sum of the squares of magnitude of both in the square root, under the square root. This is the value of the resultant for the three cases. Now turn goes for the polygon law. Polygon law को डिस्कस करते हैं, डेफिनेशन सही। थर्ड लॉ फॉर द एडिशन ऑफ वेक्टर्स, now term goes for the polygon law of vector addition. I hope कि आप नोट कर लिए होंगे, and I am sure it is clear to all of you the third topic of the addition of vectors, और ये लास्ट टॉपिक भी आज का। धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम आराम से, आधे आधे घंटे की वीडियोस में अपलोड करने का प्रयास करूंगा, हाफ एन आवर के, और प्रयास ये रहेगा कि डेली का डेली आप नोट्स बनाते चले। term goes for the polygon law of vector addition. Polygon law of vector addition. If the number of vectors are represented both in magnitude and direction, if the number of vectors are represented both in magnitude and direction, by the sides of polygon taken in same order, then the resultant of these vectors represented
represented both in magnitude and direction, both in magnitude and direction by the closing sides of polygon, closing side of polygon taken in opposite order, taken in opposite order. लेटर की साइज जानबूझ के बड़ा रखना जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखता रहे. If the number of vectors are represented both in magnitude and direction by the sides of polygon taken in the same order, then the resultant of these vectors represented both in magnitude and direction by the closing side of polygon taken in different order. जैसे हम आपको स्पष्ट दिखाते हैं. मान लिया नंबर ऑफ वेक्टर्स गिवन है. मान लो ये एक वेक्टर A है. Okay, this is the vector A. This one is the vector B. ये रहा वेक्टर C. This one is the vector D. ऐसी तमाम वेक्टर्स हैं. आपको इनहेरिट करना है. सिंपली आप एक काम करो, आप पॉलीगन बनाते जाओ. मान लो OP रिप्रेजेंट कर रहा है A को, PQ रिप्रेजेंट कर रहा है B को. मैं कह रहा टेकन इन सेम ऑर्डर. नेक्स्ट के टेल को अगले के हेड से चिपकाते जाइए बिना छेड़े. बिना छेड़े मींस टेकन इन सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, सेम लेंथ तो सेम डायरेक्शन. ये मान लिया मैंने PQ हो गया और ये QL हो गया. फिर D इज व्हाट, ये LM जो है वो D को रिप्रेजेंट कर रहा है. जैसे है वैसे ही पॉलीगन बनाते जाइए सेम ऑर्डर में. सेम ऑर्डर में आप पॉलीगन बनाते हैं तो इन सब का रिजल्टेंट कौन देगा? इन सब का रिजल्टेंट कौन देगा? जो क्लोजिंग साइड होगी पॉलीगन की, और वो अपोजिट ऑर्डर में होगी. वो अपोजिट ऑर्डर में. तो ऐसा नहीं कि अब फाइनल वाले के टेल हेड से नेक्स्ट का टेल मिला दीजिए. ये ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे ही, लेकिन हेड किधर होगा? ऊपर की ओर. टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब ये ऐसे. ये है इन सब का रिजल्ट. मतलब कहने का सेंस ये कि जो R है वो वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D के इक्वल होगा. दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस इज द पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Look up at the board simply and note down. Now turn goes for the properties of vector addition. सिंपली देख लीजिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप नोट कर चुके होंगे. टर्न गुड फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन. बहुत सिंपल. Properties of vector addition. First one is vector addition is commutative. Vector addition is commutative. मतलब क्रम को, ऑर्डर को आप उल्टा कर देंगे तो वैल्यू क्या होगी? सेम. जो आंसर A प्लस B का आएगा वही आंसर वेक्टर B प्लस वेक्टर A का है. क्लियर? इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव. मतलब ऑर्डर उल्टा करेंगे तो रिजल्ट चेंज नहीं होगा. इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव. थर्ड सेकंड वन, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव. वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव.
ग्रुपिंग चेंज करने पर आंसर चेंज नहीं होगा। ग्रुपिंग जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, तो चाहे आप ए प्लस बी के ग्रुप में सी को ऐड करें, चाहे वेक्टर ए में बी प्लस सी को ऐड करें, ग्रुपिंग चेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। इट इज नोन एज द एसोसिएटिव। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव बोलते हैं। ग्रुपिंग चेंज करने पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। दिस इज नोन एज द एसोसिएटिव। थर्ड वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे लेमडा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई कांस्टेंट, तो वो सिंपली लेमडा ए वेक्टर प्लस लेमडा बी वेक्टर होगा। इसी को बोलते हैं वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। सिंपली देख ले, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे आप। नाउ टाइम गोज फॉर द subtraction of vectors. We are to move for the subtraction of vectors. Subtraction of vectors. सपोज आपके पास दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर ए गिवन था और एक वेक्टर बी गिवन है। ओके, अभी तक क्या था कि ये गिवन था वेक्टर ए और वेक्टर बी। इफ क्वेश्चन आस्क्ड फॉर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर पूछता था तो आप क्या करते थे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अगर पूछता था तो आप क्या करते थे? आप फर्स्टली वेक्टर ए को ड्रॉ करते थे। मान लिया कि ओपी रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को, और वेक्टर ए के हेड से बिना छेड़े बी को लाके चिपका देते थे, और फिर दोनों के इनिशियल के टेल और फाइनल के हेड को मिला करके आप बोलते थे कि ये रिजल्टेंट है। क्लियर? ये एक तरीका था ट्रायंगल लॉ से एडिशन। यही अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वेक्टर ए में माइनस बी करें, सब्ट्रैक्ट करें, अच्छा इसको आप ऐसे समझ सकते हो, इसको आप ये भी तो कर सकते हैं कि वेक्टर ए में हमने माइनस बी को ऐड किया, बस हो गया सिंपली। तो वही एडिशन हुआ। वेक्टर ए को हमने पहले ड्रॉ किया, मान लिया ओपी था, बिना छेड़े गिवन था, और फिर माइनस बी को ऐड करना है, बी नहीं माइनस बी। अच्छा अगर ये बी है तो ये माइनस बी हुआ कि नहीं हुआ? मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ये क्या हो गया? माइनस बी। तो ए में आपको किसको ऐड करना है? माइनस बी को। ए के हेड से माइनस बी को लाके चिपका दिया, ए के हेड से माइनस बी को मैंने लाके चिपका दिया। पी क्यू वेक्टर, ए के हेड से मैंने माइनस बी को लाके चिपका दिया, तो ये रिजल्टेंट रहा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। है क्या असल में? ये वेक्टर ए में आपने ऐड किया किसको? माइनस बी को। तो एक वेक्टर से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना मतलब ए में माइनस बी ऐड करना। लिसन, ए से बी को सब्ट्रैक्ट करना मतलब ए में माइनस बी को ऐड करना। ये रहा। रेस्ट ऑल थिंग सेम, रेस्ट ऑल चीजें सेम होंगी। जो डेरिवेशन का थीम था, जो सब कुछ था, वो सेम होगा। This is the complete lecture for today. So today we have dealt with the addition of vectors pointing in the different direction, triangle law, parallelogram law, and polygon law, subtraction of vectors, and all things. So the two cases are remain to study in the vectors topic. First one is the resolution of vector, one of the important topic. Resolution of vector, जितना सब कुछ पढ़े उन सबसे कई गुना ज्यादा important resolution of vector. And third one is the next one is the properties of vector में cross product और dot product. So namaste for today.
हैव महानाइस डे, लगे रहिए लगातार। थैंक्स।